હેલો, એમ આઈ ઓડિબલ? આનંદ જોશી, અવાજ આવે છે? યસ સર, આવે છે અવાજ. Okay, fine. We will begin our lecture sharply at 11:30 so that everybody can join. Okay. ઓકે સર. સર એક ક્વેરી હતી, કહું સર? હેલો સર. એક જ મિનિટ, હમણાં કિશન સર આવે છે. નો વન વિલ લીવ. ઓકે સર. Hello, am I audible to you? યસ સર. Okay, fine. So we will wait for the more 2 minutes so that your friends can join also. So right now we have only 13 colleagues are there. Yes. સર, સર હું એમ કહું છું કે સર આપણા ઝૂમ માં જે એપ લ્યો છો ને, મીન્સ કે લેક્ચર લ્યો છો ને પછી સર, વાત કરીએ મિત્ર, તો પછી વાત ને કરીએ. Okay. So ઓકે that issue you can ask me in personally. Okay. So right now we will discuss. ઓકે સર. Okay. Yes. ઓકે So okay, you can write down your roll number in the chat box. Okay. You can write down the roll number. So, okay, fine. Right now we have only 17 students are there. We will wait for 20 students, then we will start our lecture. Till now, I can ask a few questions regarding the previous lecture. Okay. So, let us start.
So now let us start our lecture. Okay. So in the previous lecture, what we have done, that I am sharing a screen with you. Okay. Hello, am I audible? Kripal Singh Jala? યસ સર. Yes, yes. Am I audible to you? યસ સર, ક્લિયર સર. ओके. सो क्वेश्चन इज दैट आपके स्क्रीन के सामने ये स्केल है, ठीक है. आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन वो बनाते कैसे हो इसका कोई आइडिया है? આ સ્કેલ આપણે બનાવ્યું હોય તો કેવી રીતે બનાવી શકીએ, કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરી શકીએ, કયા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખવા પડે, એની આઈડિયા? કૃપાલ સિંહ ઝાલા. હા સર. હા, એની આઈડિયા? એક ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો મેં. હા સર, ઈ તો મેં સાંભળ્યો સર. સ્કેલ હા. બને કેવી રીતના સર, ઈ ને? હા હા, યસ યસ યસ. સર સર એની માટે સર આપણે ઓલું જેમ કે ડાય કેમ આવે સર, એવી ડાય હશે જેમ કે એટલા ફૂટ બાય એટલા ફૂટની, અને એમાં સર આપણે પ્લાસ્ટિક ઓગાળી એમાં નાખવાનું, પછી તે બને સર. મેજરમેન્ટ એને હાથે ડાય બનાવેલી હશે. Okay, that is a manufacturing process, but what I'm asking about that, suppose you want to mark 6.7 kilometer on a map. Okay, so you are taking a scale that 1 kilometer is equal to 1 centimeter, likewise. Okay, तो अगर मैं कहूं आपको, तो स्केल मार्केट में मिलते हैं वो 15 सेंटीमीटर की मिलते हैं, हाफ फुट, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर की मिलते हैं, ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 7 सेंटीमीटर वाली स्केल चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? ओके, अनिकेत उंधाड़. Yes, अनिकेत, sir. एनी आइडिया?
मैं अगर आपको कहूं कि मुझे 8 सेंटीमीटर वाली स्केल बना के दो, तो आप बना सकते हो? સર एनी आइडिया? यस। સર 8 સેન્ટીમીટરની સ્કેલ બનાવી હોય તો આપણે મીન્સ સર આપણે એને કેવી રીતે આમ મેઝરમેન્ટ લઈને આપણે કેવી રીતે બનાવી એમ કહો છો તમે? हाँ, हेलो सर। કઈ ખબર નહીં. ओके पवन कुमार शाह, सर। यस। हाँ हाँ सर, आवाज सही नहीं आ रहा सर, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके आप रिज्वाइन कर दो, रिज्वाइन करो, ठीक है, आप रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। खुशी 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 Yes, रावत। sir. ओके सर। हाँ, ओके। Any idea regarding what I'm asking? Do you have any kind of answer? એટલે સ્કેલ કેવી રીતે મેન્યુફેક્ચર કરે એમ? હા 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 એક્ઝેક્ટલી, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એ અલગ વસ્તુ છે, પણ હું તમને એમ કહું ઓડ ફિગર આપું, માર્કેટમાં 15 સેન્ટીમીટર ની મળે, 30 સેન્ટીમીટર હા મળે, સર. હું એમ કહું કે 8.7 સેન્ટીમીટર ની સ્કેલ મને આપી દો. સો એની આઈડિયા? નો સર. Okay, fine. So that is one curious question about the scale. Okay, we are going to learn that portion in this lecture. So keep pay attention here, and if you have any kind of doubt in between, you can ask me. Okay. So first and foremost thing, आप सभी ने गूगल मैप यूज किया ही होगा, ठीक है? तो वो गूगल मैप में यहाँ पे बॉटम में, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक स्केल आती है, ठीक है? उसके मदद से आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो आपको मालूम हो सकता है, ठीक है? तो इसके लिए हमें पहले समझना होगा स्केल क्या है, ठीक है? सो एज यूजुअल इन द लेक्चर, you need to mark it down in your you need to note down in the book. Okay, and I will ask randomly to submit the task. Okay, so first and foremost thing, write down a scale in your book. And what do you mean by scale? So it is the basic requirement for the preparation of the plan and map. If you want to prepare a plan or map, you require a scale. So what is the requirement of the scale? To prepare a plan and map. So you may note down in your book that scale is required for preparation of plan and map. Okay. So what is the exact definition of the scale? The portion, the scale is the portion or ratio between the dimension adopted for the drawing and the corresponding dimension of the object. That means it is the ratio. So can anybody tell me the unit of the scale? Ankit Kumar Misra. Yes, sir. Scale is a ratio. Okay, so what is the unit of the unit of the scale? Sir, centimeter. Centimeter. Okay. Jainab. સર સેન્ટીમીટર અને ઇંચ. Okay. Then Kripal Singh Jala. સર સેન્ટીમીટર ને mm માં. So what is the unit of the length? Okay. Sumit Adroja. Scale no unit શું હોય? Centimeter. Scale is a ratio. So ratio has no unit. Scale is unitless, because ultimately when you are saying that 1 centimeter is equal to 1 kilometer, so it is a distance upon distance. Okay, so distance will be cancelled out and you have only unit. That means no unit, unitless. Okay, so that kind of question that can be asked in the midterm exam. Are you getting this out? So what is the unit of the scale? So that you need to answer is scale has no unit, unitless. Okay, No yes. Any doubt in this scale? So what you need to write down in your notebook, that is the second point.
Scale is the portion or a ratio. Write down in your book. Scale is the portion or a ratio between the dimension adopted for the drawing and the સર પાછું corresponding. બોલું તો તમારે સામે જ છે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે જો સેકન્ડ પોઈન્ટ this one. Are you getting this one or second point? This one. ઓકે સર. So the scale is the portion or a ratio between the dimension adopted for the drawing and corresponding dimension of the object. Are you getting this or not? So ultimately मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. Yes, एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर का रोड जो है अपनी बुक में ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? उसका स्केल लेंगे सर, उसका स्केल छोटा करेंगे, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ऐसे करके कुछ लेंगे. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 500 किलोमीटर का रोड का ड्राइंग मुझे देना है, तो आप 500 किलोमीटर लेंथ वाला पेपर ढूंढने नहीं जाएंगे. आप क्या करेंगे? आप सिंपल इसका स्केल ले लीजिए कि भाई मैं बोलूंगा कि 100 सेंटीमीटर, लेट अस से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, लाइक दैट इज इट. सो आप क्या क्या बोलते हो कि मैं एक स्केल लेता हूं कि 500 किलोमीटर रोड मुझे अगर मैप में इंडिकेट करना है, तो मैं क्या कर लूंगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट अस से 100 किलोमीटर. सो आपकी स्केल क्या हुई? आपकी स्केल हुई 1 jam 100, isn't it? Are you getting this or not? आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ओके फाइन. सो बेसिकली मैंने जो आपको समझाया अभी कि स्केल का रेशियो क्या होता है, तो स्केल इज इक्वल टू, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो लाइक दैट ऑल्सो, इट इज द डिस्टेंस ऑन द मैप so that this thing you need to write down in your notebook. Okay, so what is the ratio of the distance on the map or plan divided by distance on ground, isn't it? Are you getting this or no? मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक जो है 1 सेंटीमीटर है वो मैंने मैप पे बनाया. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर वो मैंने कहां पे बनाया? मैप पे बनाया. ठीक है, और ये 100 किलोमीटर क्या है एक्चुअली? इट इज द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द स्केल? 1 jam 100, that means it is the ratio which has no unit. Okay, no unit. This is a very important thing. Okay, this is the basic and fundamental of the surveying. That is a very important thing. So scale is the ratio between the distance on the map or the ground, distance on the map or plan to the distance on the ground. Any doubt in this? Okay, let me ask you that question. Ankit Kumar Mishra. यस सर. आपको समझ में आया स्केल क्या होता है? आप मुझे समझाइए. आपका ध्यान नहीं है क्या लेक्चर में? है सर. हाँ, तो क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, पे अटेंशन ओवर हियर. ओके, पार्थ कक्कड़. યસ સર. હા, સ્કેલ શું છે મેં આ સમજાવ્યું તમને, બરોબર? સપોઝ હું તમને બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમારે મને એ સમજાવવું જોઈએ, બરોબર? Okay, so let us say 1 inch is equal to 100 centimeter. Are you getting this or not? યસ સર. Okay, તો હવે આમાં સ્કેલ નો કોન્સેપ્ટ મને સમજાવો.
સર આપણે જેમ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જોવા જાય ને તો ઈ 1 ઇંચ થતું હોય તો ઈ નાનું થતું હોય, આપણે એને મોટું કરવા માટે 100 સેમી કરી શકાય અને 100 સેમી નું 1 ઇંચ પણ કરી શકાય. ઓકે, તો 100 સેન્ટીમીટર એ કઈ જગ્યાએ છે? ગ્રાઉન્ડ ઉપર છે કે મેપમાં છે? એ સર આપણે મેપમાં છે, આપણે પ્લાન દોર્યો એમાં. That is your wrong. Your answer is wrong. 100 centimeter is on the ground. 1 inch in on the map. Are you getting this or not? Yes, sir. Okay. So what is the? You can see here the definition, so you will get the idea. Scale is the distance on the map or plan divided by distance on the ground. તો તમે 100 સેન્ટીમીટરનું પેપર લેવા નહીં જાઓ, તમે 1 ઇંચનું પેપર, 1 ઇંચની લાઈન છે એ પેપરમાં બનાવશો. That is your map. Are you getting this or not? 1 inch is equal to 100 centimeter. Yes, sir. Okay. Now simple question is that, yes, 1 inch is equal to how many centimeter? ઋત્વિક વાજા. યસ સર. હા, 1 ઇંચમાં કેટલા સેન્ટીમીટર હોય? 1 ઇંચમાં વેઇટ સર. હા, 1 ઇંચમાં 1 ફૂટમાં કેટલા ઇંચ હોય? 1 ફૂટમાં 12. Are you not sure about that? નોટ શ્યોર સર. કેમ? So as a civil engineer, you must be aware about that. 1 ફૂટમાં કેટલા ઇંચ હોય? સમજ્યા તમે? તમે મને એક કામ કરજો ભાઈ, ઋત્વિક વાજા ને? યસ સર. કહું સર? 1 મિનિટ, હા, પેલા ઋત્વિકને પૂછી લઈએ, બરોબર? ઋત્વિક, તમે મને છે ને યુનિટ કન્વર્ઝનનું ટેબલ બનાવીને આજે મને સબમિટ કરશો. યુનિટ એટલે બધા યુનિટ કે બધા યુનિટ, હા, જેટલા સર્વેઇંગ ની અંદર આવે છે, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં આવે છે, એ મને સબમિટ કરવાનું રહેશે. ઓકે સર. ઓકે, હું જેને જેને ક્વેશ્ચન પૂછું ના આવડે એટલે આ ટેબલ મને કોઈ પણ જગ્યાએ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને મને સબમિટ કરે. ચલો, યસ પરમાર. યસ સર. હા, યસ સર. 1 ફૂટમાં કેટલા ઇંચ હોય? 0.300. હા, 0.300. તમારે શું નામ તમારું? હા, તમારું શું નામ? યસ પરમાર. તમારે પણ સબમિટ કરવાનું, હા, ટેબલ ડ્રો કરીને, બરાબર? Okay. If you are not knowing the basic fundamental of the unit conversion, how you can learn the other principles from the surveying? So basic and first and foremost thing is you need to understand the unit conversion. चलो फरीथी पाछा कोई ने पूछिए. दीपक कुमार चौधरी, आपको पता है 1 फुट में कितना इंच होता है? दीपक कुमार चौधरी. ये सर हाँ, एक फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच. 12 इंच, एब्सोल्युटली राइट. अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 फुट में 12 इंच आता है तो आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? दीपक कुमार. 2.5. Yes, you are right. 2.54 centimeter is equal to 1 inch. Okay, nice. So everybody, you must be aware about the different unit conversion. Okay. So ultimate thing is you need to aware about the all kind of unit conversions. Okay. So get back to our main concept, that is scale. Scale, you are aware about that. Scale is the ratio of, you can take a screenshot of this also. Scale is a ratio of the distance on the map or a plan on the ground to the distance on the ground. Okay. One more thing. As I mentioned here, 1 centimeter is equal to 100 kilometer. And I have simply mentioned that 1 centimeter is equal to 1 × 100. Okay.
So it is not right. You need to convert this kilometer into centimeter. Okay. So can anybody tell me 1 kilometer is equal to how many centimeter? Okay. 1000. Are you sure? Okay, let us go one by one. Dipesh Bhuva. યસ સર. હા હા, આપણે 1 કિલોમીટરમાં કેટલા મીટર હોય પહેલા તો? સર પહેલેથી બોલજો. 1 કિલોમીટર હોય ડિસ્ટન્સ, એમાં કેટલા મીટર હોય? કેટલા મીટર 1 કિલોમીટર થાય? Are you getting this or not? સમજાય છે? હા સર. હા સર 1 બોલો, કિલોમીટરથી કેટલા? કેટલા મીટર થાય? 1000. યસ, 1 કિલોમીટર એટલે 1000 મીટર થાય. ઓકે, નાઉ 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાઉ મેની સેન્ટીમીટર? 1 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા સેન્ટીમીટર થાય? સર 1000 હશે. 10000. કેવી વાત કરો છો મિત્ર? સર હું કહું? હા હા, કહું સર. બોલો. સર હું કહું? કૃપાલ, સર કૃપાલ, 100. કૃપાલ. યસ સર. હા બોલો કૃપાલ. સર 100. હા, તો હવે મને એ કહો કે 1 કિલોમીટર એટલે કેટલા સેન્ટીમીટર થાય? 1 લાખ. હા, સમજાણું? એટલે બેઝિકલી તમારે યુનિટ કન્વર્ઝન જે છે કાચું હોય એ લોકો મને ટેબલ મોકલી દે, બરોબર? આ કોણ હતું ભાઈ? દીપેશ ભુવા. યસ સર. તમારે મને ટેબલ લખીને મને મોકલજો, બરોબર? આ ક્લિયર કરો પેલા, બરોબર? ઓકે. So our main aim is to identify the ratio. This ratio is wrong. Okay. So this is the wrong ratio. So correct ratio is we will convert this centimeter, 100 kilometer into centimeter. So first of all, you need to write down that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay. And second, 1 meter is equal to 100 centimeter. So ultimately 1 सेंटीमीटर हमें स्केल बनानी है, ठीक है? स्केल so scale is equal to 1 centimeter divided by 1000 into 100 centimeter. Getting this or not? So is equal to so the scale is equal to 1 centimeter divided by 1 lakh centimeter. So finally, scale is a ratio which is a unitless is equal to 1/1 lakh. So this is your correct answer. સમજાય છે હું શું કહું છું એ? Any doubt in this? So when I ask a question, why scale is a unitless? Because it is the ratio of the distance upon distance. Okay, so that centimeter cancel out and we will have a only ratio. So that is why it is a unitless. So let us get back to our main content. So now any doubt in the definition of the scale? Anybody? નો સર. રાજકુમાર વૈષ્ણવ છે ભાઈ? પ્રસિદ્ધ ચાવડા? હા સર. હા, કોઈ ડાઉટ હવે? શું કામ આપણે સ્કેલ નો યુનિટ નથી એ ખબર પડી? હા સર, ખબર પડી. ઓકે, પછી ખંજન પરમાર. ખંજન પરમાર છે ભાઈ હાજર કે મોબાઈલ મૂકીને જતા રહ્યા? યસ સર. હા, તમારો વિડિયો ઓન કરો તો. હા સર, એક મિનિટ કરું. ફટાફટ, we don't have a time. ક્યાં બહાર છો?
ના સર ઓફિસે છું મારી. ઓફિસે છો તમે? આજે સ્કેલની ડેફિનેશન લખવાનું કીધું એ મને બતાવો સર વિડીયોથી. ઓફિસે છું ને મારે સર નેટ પૂરું થઈ ગયું છે આમાં. જો મિત્ર, ધેટ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ. હું ફરીથી તમને નહીં કહું, બરોબર? તમારે તો સર અમારે એડજસ્ટ કઈ રીતના કરવું? બધા ગૂગલ મીટ માં લેક્ચર એમાં અમારે નેટ ઉપડી જાય છે. okay, that point we will discuss afterward, but right now main concern is you have written anywhere that I have discussed that you need to write down the definition of the scale. સર અહીંયા ઓફિસે છું, ઘરે જઈને તમને મોકલી આપીશ. Okay, next time onwards I will not allow you for that. Okay, you must have a pen and paper at office also. ઓકે સર. Karan Kumar Chaudhary. करण कुमार. हाँ सर. आपको समझ में आया स्केल क्या होता है? हाँ सर. ओके फाइन. खुशी? हाँ, समझाओ ये स्केल શું Yes, છે? sir. Scale is basically distance on the map or plan by Okay. distance on the ground. उमेश कुमार. Yes, sir. Okay. So what do you mean by plan? क्वेश्चन है सर. हाँ, क्वेश्चन है. प्लान क्या है? सर प्लान ये है जो हम कोई किसी भी एरिया का प्लान बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या मेरे को करना है, यानी कि कौन सा किसी भी बिल्डिंग का प्लान बनाना. ओके, आपका आपके 2D घर का में. जो ओके, आपके घर का प्लान होता है या मैप होता है? घर का मैं अगर ऐसा बोल सकता हूँ कि करण के घर का ये मैप है, ये बोल सकता हूँ, या फिर मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि करण का घर जो है उसका ये प्लान है? नहीं सर, मैप होगा. मैप होगा. एक काम कीजिए, आप जो है प्लान वर्सेस मैप वाला जो डिफरेंस है ना, वो आप मुझे लिख के भेजिए, ठीक है? क्या नाम आपका? करण? उमेश है सर. उमेश, हाँ उमेश. Yes. ठीक है, उमेश कुमार. आपको क्या मैं सर क्या भेजना है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्या आपको भेजना है. आपको हमने ये पहले चलाया था कि डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप. आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे. ये वाला आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ई कंटेंट में भी अवेलेबल है. तो आपको यही नहीं पता है कि प्लान क्या है कि मैप क्या है, तो आप स्केल कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसीलिए हमने प्लान आपको पहले समझाया कि प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, एंड द स्केल इज लार्ज. ओके, तो यहाँ पे स्केल आ रहा है, तो स्केल को आपको समझना होगा, ठीक है, और आपको प्लान को भी समझना होगा, ठीक है. सो इन द मैप स्केल इज स्मॉल. तो उमेश कुमार के घर का जो है वो क्या होगा? मैप होगा, सॉरी प्लान होगा, ठीक है. समझ में आ रहा है बात? उमेश कुमार, अगर मैं बोलूं बिहार का मैप होता है, बिहार का प्लान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इट हैज अ वेरी लार्ज एरिया एंड द स्केल इज वेरी स्मॉल. समझ में आया? यस सर. उमेश कुमार, ओके, आपको ये मुझे Yes, लिख sir. के भेजना है, ठीक है, प्लान वर्सेस मैप. ओके सर. Okay, fine. Okay, so let us go back to the scale. Yes. Okay, another technical word which is majorly used in the scale topic is representation fraction, RF. उसको हम RF बोलते हैं, ठीक है. तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं और रिप्रेजेंटेशन फैक्टर बोलते हैं. तो ये भी आपको डेफिनेशन और रेशियो जो है वो आपको लिखना है, ठीक है. तो क्या है डेफिनेशन? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग टू द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, सो बेसिकली क्या है कि लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल. जैसे हमने ये व्हाइट बोर्ड में किया था कि आपके लिए एक्चुअल डिस्टेंस क्या है ग्राउंड पे? एक्चुअल डिस्टेंस क्या है आपका?
कि आपका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। सपोज मैं 1 j 100 बोलूं तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, 100 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, लेकिन आप मैप पे क्या ड्रॉ कर रहे हो, 1 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये आपको रेशियो जो है आपको लिखना है अपने नोटबुक में। ओके, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग to the corresponding actual length of the object on the ground. So basically it is a distance on the map. हमने ये स्केल की डेफिनेशन लिखी थी। It is also a representative factor. So it is a distance by map to the ground. ये आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आया? मैप टू द ग्राउंड इस तरह से आपको याद रखना है। इसमें कोई डाउट है? आपको दो डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, पहली तो स्केल क्या है, दूसरी जो है वो आरएफ क्या है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है एनीबॉडी? संतोष कुमार? यस सर। आप मुझे समझाइए कि स्केल और आरएफ क्या होता है, कोई एग्जांपल से। सर स्केल का मतलब हो गया कि जो आपने एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, और जो है ड्राइंग लेंथ, ठीक है, एक्चुअल ड्राइंग लेंथ आप एक्चुअल लेंथ, अगर हम उसको दोनों को सर करें तो उसमें जो रेशियो ऑफ एक्चुअल लेंथ अपॉन ड्राइंग लेंथ इक्वल टू स्केल होता है सर। ये गलत बोला आपने, रिवर्स बोल रहे हो आप। रेशियो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो बिटवीन द मैप टू द ग्राउंड। तो पहले आप मैप वाला डिस्टेंस लिखेंगे, उसके बाद ग्राउंड वाला। मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हाँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो स्केल है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे विंडो है, ठीक है, ये हमारे विंडो है। और विंडो का जो है जनरल डायमेंशन क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? कृपाल सिंह जाला, विंडो की साइज कितनी होते हैं नॉर्मली? 2 फुट बाय 3 फुट सर। मीटर में बोलो, मीटर में। ओके, जैनब? सर 1.5। हाँ જૈનબ જૈનબ 2 મીટર સુધીની હોઈ શકે 1.2 થી લઈને 2 મીટર સુધી. Okay, so I'm considering that length of the window is 2 meter. Okay, so 2 meter, so it is the length. Okay, I'm putting over here, and 1 meter is the, or 1.2 meter is the height. Okay, so let us say, so now this thing I have drawn in the 2D or map or plan. Okay, but actually window size is large. मैंने ये विंडो जो है इतना छोटा सा बना दिया, ठीक है, समझ में आया? 2 मीटर को मैंने इतना ही बताया। तो आपकी स्केल कितनी रहनी चाहिए कि आप जो 1 सेंटीमीटर आप प्लान में ड्रॉ करते हो वो एक्चुअल में 2 मीटर है, ठीक है। तो आपको 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे तो आप एक्चुअली ग्राउंड पे कितना रिप्रेजेंट कर रहे हो, 2 मीटर। समझ में आया? So that is the main concept regarding the scale. Okay, so there are basically 2 types of the scale. You can note down this thing: plane scale and diagonal scale. Write down the 2 types of the scale. Number 1 is plane scale, and second one is diagonal scale. So now let us discuss the plane scale. Okay, so what does it mean? The plane scale is the most commonly used in the map to represent 2 consecutive units. That means આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ એક સાઈડ આપણે 1 ઇંચમાં હોય ને બીજી બાજુ જે છે સેન્ટીમીટરમાં હોય. So that is the case. So you need to write down the first point.
the plane scale is the most commonly used. That is the number one thing. Second one is it is represent two consecutive units. Okay, that means one is the main unit, second one is the sub unit. Okay, जैसे मैंने आपको पहले बताया, this scale is not drawn like an ordinary foot scale, 30 सेंटीमीटर स्केल. मार्केट में जो आपको 1 फुट जो मिलती है 30 सेंटीमीटर वाली, उसके जैसे हम इसको नहीं बनाएंगे. ठीक है, so that is the characteristic of the plane scale. दूसरी बात, if a scale of 1 gem 40 is to be drawn, the marking are not like 4 meter, 8 meter and 12 meter. समझ में आया? At every 1 centimeter. तो आपको एक चीज जो है वो याद रखनी है कि प्लेन स्केल की डेफिनेशन आप याद रख लीजिए. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ तो अच्छे से दिख जाए. ठीक है, ठीक है, ये आपको लिखना है अपनी बुक में, लिख लीजिए. दूसरी बात, इसको हम नॉर्मल तरीके से जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे कि 1 फीट वाला जो स्केल है उसके हिसाब से नहीं ड्रॉ करेंगे, अपने हिसाब से अपने एजम्पशंस के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो आइए हम जो है कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लेन स्केल. ठीक है, वो हम सीख लेते हैं. तो एग्जांपल है आपका. ठीक है, तो एग्जांपल में ये आपको लिखना है पहले कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल. आपको स्केल बनानी है, स्केल ड्रॉ करनी है खुद की, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF 1 डिवाइडेड बाय 500, दैट मींस 1 gem 500 है. ठीक है, एंड इंडिकेट द 66 मीटर ऑन दैट. सो ये आपका प्रॉब्लम है. ठीक है, ये आप लिख लीजिए, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल of having a RF is equal to 1 gem 500 and you need to indicate the 66 meter on it. ठीक है, तो यहाँ पे जो थियोरी लिखी गई है वो समझने के लिए हमें ये जो फिगर है यहाँ पे ये समझनी होगी. तो यहाँ पे क्या है कि आप देखिए, हमें 66 मीटर को इंडिकेट करना है. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम बाजू में यहाँ पे कुछ स्केल बनाएंगे. ठीक है, तो अगर ये हम 66 को हम डिवाइड करें, 60 + 6 कह सकते हैं. सिंपल है. तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट 60 जो पोर्शन है उसके लिए मैं अलग स्केल ड्रॉ करूंगा, और दूसरा जो रिमेनिंग 6 है उसके लिए मैं अलग स्केल ड्रॉ करूंगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पोर्शन में है कि हमने पहले क्या किया कि 66 को हमने कैसे डिवाइड किया, 60 + 6. हमको राउंड फिगर में उसको डिवाइड करना है. ठीक है, अगर मैं आपको 57 बोलूं तो आपको कैसे करना है, 50 + 7. लाइकवाइज 41 बोलूं तो 40 + 1. ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर, 60 मीटर. सो आई हैव मार्क्ड फ्रॉम हियर. जो जीरो ક્યાંથી ચાલુ થાય છે, जो जीरो इज नॉट बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट मोस्ट साइड, इट इज बिगिनिंग इन बिटवीन. So mention that 0 at in between. Then we are giving 10, 20, 30, likewise up to the 90. And remaining 6 we have draw another scale. Okay. So that is the main concept of the constructing a plane scale. So ultimately, you need to understand this figure to solve the above problem. Okay. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, ये आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड आपको दिया है. ठीक है, तो अगर आपको प्लेन स्केल बनानी है जिसका स्केल जो है 1 gem 500 होना चाहिए, और उस स्केल पे आपको 66 मीटर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. मैं क्या करता हूं, सिंपल जो है गूगल में जाके गूगल मैप लिखता हूं, गूगल मैप. ठीक है, ये मैंने मैप ओपन किया. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब राजकोट लिखता हूं, ठीक है, तो अब आप ये देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा
बॉटम साइड, मैं आपको एक इंडिकेट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, ये आपको दिख रहा है विजिबल? कृपाल सिंह जाला, ये आपको दिख रहा है? एरो इंडिकेट किया वो आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, तो अब आप मार्क Yes, कीजिए, yes. जैसे जैसे मैं इसको जूम करता जाता हूं वहां पे स्केल जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है? तो देखिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं अब क्लियर करता हूँ, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? ये दिस इज अवर स्केल, ये हम बनाने जा रहे हैं। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने तो अपना प्रोग्राम बना लिया अलग से कि हर बार जो इसको स्केल बनानी ना पड़े, लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्केल कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ सारी चीजें, ठीक है? और इसको क्वाइट करता हूँ। देखिए अब आपको यहाँ पे बॉटम पे ध्यान रखना है, मैंने जहाँ पे पहले एरो बनाया था, तो अगर मैं इसको जूम करता जाऊँ, देखिए ये डिस्टेंस जो चेंज होता जा रहा है, ठीक है? समझ में आया? 500 मीटर, आपको कहाँ पे ध्यान रखना है? 200 मीटर, ठीक है? 50 मीटर। तो ये समझ में आया कि एक्चुअली ग्राउंड पे जो 50 मीटर डिस्टेंस है, ग्राउंड पे भी जो है मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये रोड की लेंथ हो गई, ठीक है? तो ये रोड की जो लेंथ है, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि 50 मीटर है, मान लीजिए एक्चुअली क्या है कि वो 50 मीटर है, लेकिन हमने कितना इंडिकेट किया? यहां से लेके मैप में हमने यहां तक का इंडिकेट किया, ठीक है? तो वो हो गई आपकी प्लेन स्केल। समझ में आया? ये जो है आपकी प्लेन स्केल हो गई। तो ये हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं। समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आया? मैं आपको पूछता हूँ, किसको पूछो अब? कुसाई हजारे, ऋत्विक वाजा। हाँ, પ્રોબ્લેમ સમજાણો હું તમને શું કહેવા માંગુ છું, Yes, આપણે sir. શું શીખી રહ્યા છીએ ખબર પડી? હા સર, તમે અત્યારે સ્કેલ હા ડ્રો હા, મને કહો તો ગૂગલ મેપ નું સમજો. શું કઈ રીતે કામ કરે છે? સર ગૂગલ મેપમાં તમે જે રીતે કર્યું હતું રાજકોટ, એ પ્રમાણે એની આખું રાજકોટ પેલા માર્ક કર્યું ને પછી એમાં સ્કેલ 2 કિલોમીટર ની દેખાડતી હતી, પછી જેમ તમે ઝૂમ કરતા ગયા ને, જે પછી એક રોડ તમે ઝૂમ કર્યો તો એમાં 50 મીટર નો સ્કેલ દેખાડી એક્ઝેક્ટલી. હતી. સો તમારું કન્ક્લુઝન એટલે શું હોવું જોઈએ? વોટ ઇઝ યોર કન્ક્લુઝન? કે જેમ એટલે જેમ સ્કેલ, હા સ્કેલ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જાય એમ એમ બદલતી જાય છે. ઝૂમ આપણે ઝૂમ કરતા કરીએ તો સ્કેલ વધે કે ઘટે? ઘટે. પેલા 2 કિલોમીટર હતી, અત્યારે 50 મીટર છે. यस, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लान और मैप। आप जैसे जैसे डिटेल बढ़ाओगे, अपने मैप में डिटेल बढ़ाओगे, प्लान में मैप बढ़ाओगे, तो स्केल की एरिया उतना कितना होगा? छोटा होगा। समझ में आया? तो एरिया छोटा आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? स्केल जो है वो लार्ज है, ठीक है? तो ये आप जूम जैसे जैसे करोगे जिसके लिए, तो उसकी स्केल जो है वो डाउन होती जाएगी, ठीक है? आपको ये समझ में आया? आप एक और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप, मैंने जैसे आपको यहाँ पे इंडिकेट किया, आप अपने हिसाब से अपना एरिया लीजिए और जूम करते जाइए, क्या फर्क पड़ता है वो आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है? तो वो हम कैसे बना सकते हैं, गूगल ने ये कैसे किया, ठीक है? तो वो हम आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? जैसे कि ये मैं भाव ये जो है यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का जो है सर्कल लिख रहा हूं, ठीक है? अगर इस सिविल हॉस्पिटल का मुझे एग्जैक्ट डायमीटर क्या है वो मुझे चाहिए, इनर डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, तो मैं इस स्केल की हेल्प लूंगा। समझ में आया? जैसे हमने आर्क जेएस में सीखा था, सिमिलरली ये डिस्टेंस हम मेजर करने के लिए एक गूगल जो है वो प्रोग्रामिंग यूज करता है, ठीक है? तो वो हम सीख रहे हैं। क्लियर? ओके, सो अब उसको हम बनाएंगे कैसे? ये वाली स्केल जो है वो नीचे आपने गूगल मैप में देखी थी, ठीक है? तो 50 हो रहा था, यहाँ पे 50 हो रहा था, ठीक है? यहाँ पे कभी कभी 2 किलोमीटर हो रहा था, ठीक है? तो इन बिटवीन आप 2.3 भी कर सकते हो, ठीक है? तो वो कैसे बनाते हैं? आप मेरे साथ जो है वो स्केल अपने नोटबुक में ड्रॉ करते जाइए, ठीक है?
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखा कि what we have to do, we have to construct a plane scale of having a RF 1 GM 500. You need to indicate a 66 meter on that. Okay, तो आपने ये लिखा। तो अब मैं आपको फटाफट से स्टेप्स बता कैसे ड्रॉ करना है। सो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इट इज 60 प्लस 6। तो पहले हम 60 के लिए स्केल बनाएंगे, उसके बाद हम 6 के लिए प्लेन स्केल बनाएंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, इफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्केल इज सिलेक्टेड 20 सेंटीमीटर, it represent a total length of the 500 into 20, that is 10,000 centimeter, which is 100 meter. तो आपको करना क्या है, draw a line of 20 centimeter and divide it into 10 equal parts. तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। आप स्केल लीजिए और अपनी बुक में इस तरह से यहां से लेके यहां तक एक यहां से लेके यहां तक आप जो है एक लाइन बनाइए जिसकी लेंथ होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? आपको क्या करना है, ये में स्केल बना रहे हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मैं इरेज कर देता हूं, वापस से करते हैं। आपको 20 सेंटीमीटर की एक इस तरह से लाइन बनानी है। ठीक है, अब उस 20 सेंटीमीटर को आपको 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना है, इस तरह से मार्क करते जाइए। ठीक है, तो पहला जो है तो मान लीजिए 1 2, ठीक है, आप एक्यूरेटली कीजिए 3 4 5। लाइकवाइज आपको 10 इक्वल पार्ट्स में जो है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया। आपको उसको 10 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ बनाना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि हेंस ईच पार्ट कोरस्पॉन्ड टू द 10 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड पे वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 10 सेंटीमीटर। सो द फर्स्ट पार्ट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज सब डिवाइडेड। तो जो आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है स्केल का, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको आपको और 10 भाग में डिवाइड करना है। जैसे कि मान लीजिए दैट इज दिस इज अवर एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन है, अब आप जीरो कहां पे रखेंगे, आप मुझे बताइए जीरो कहां पे रखेंगे जैनब? Where should Sir, I mark middle में। as zero? Yes. So I will mark 0 at here, not here. समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ लिखूंगा 0, यहां से। हमारी स्केल यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद 1 और 10 लाइकवाइज। ठीक है, 2। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन में क्या बता रहे हैं, हमें इस पोर्शन को 10 भाग में जो है डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप कर दीजिए वापस। यस સર આ બ્લુ લાઈન થી સમજાવો ને પાછું। કયો બ્લુ લાઈન? This one. હા, ઈ બે લાઈન કરી છે ને ત્યાંથી સમજાવો ને બે। ઓકે, મેં શું કર્યું, મેં પેલા 20 સેન્ટીમીટરની જે છે બુકમાં લાઈન ડ્રો કરી, બરોબર, પછી એને મેં 10 ભાગમાં डिवाइड करी। सर इसको 10 भाग में डिवाइड क्यों करेंगे? हमें तो 6.66 मीटर का जरूरत है ना, वो इसको हाँ अगेन 6 भाग में पहले डिवाइड कर देंगे, फिर इस साइड 1 मीटर का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब 10 का कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारे पास 66 मीटर है। ठीक है,
उसको हमने पहले क्या किया, 60 मीटर प्लस 6 मीटर. ओके, अगेन आई कैन डिवाइड 60 मीटर into 10 plus 10 plus 10. समझ में आए? ठीक है, समझ में आया? यस सर. ओके, तो बेसिकली आपको राउंड फिगर रखना है, तो इसलिए हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया. और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं मार्क करता जा रहा हूं. ठीक है, ये ब्लू लाइन वाला को आपको किसको डाउट था? सर मने. हाँ, कौन? केवल. केवल दवे. हाँ, तो जो તમે 10 ભાગમાં તમે ડિવાઈડ કર્યું છે, બરોબર, તેમાં સૌથી પહેલો ભાગ છે એને આપણે એક્સ્ટ્રીમ લેફ્ટ કહીએ, બરોબર? સમજાણું? તો જે પહેલો ભાગ છે so this is our extreme left portion. ડાબી સાઈડનો સૌથી પહેલો ભાગ આવે એને આપણે ફરીથી 10 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવાનો. ઓકે, સો this is the fifth number. અને એને પાછો તમે અહીંયાથી ડાઉટ કરી શકો. 0 અહીંયા છે તો 1 ક્યાં આવશે? 1 2 લાઇકવાઇઝ. સમજાય છે? હા સર. Clear? So sir. now you can easily represent the 66 meter on this scale. What is written there? So first part on the extreme left is subdivided into the 10 parts. So each division representing the 1 meter on the field. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो है 10 मीटर इंडिकेट करेगा ग्राउंड पे. 10 जो है वो 10 सेंटीमीटर स्केल पे है, लेकिन ग्राउंड पे क्या है कि 10 मीटर है. ठीक है, फिर 20 मीटर, 30 मीटर, ये 40 हो गया, 50 और 60. और यहां से हमने क्या किया, इस तरह से हमने स्केल बनाई थी. तो सिंपल है कि अब हम क्या करेंगे कि आपको मार्किंग भी इंडिकेट करनी है. तो हम क्या करेंगे, ये अपने स्केल पहले से बनाए हुए है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 पे जो है 60 पे हम बड़ा यहाँ पे इस तरह से वर्टिकल लाइन बनाएंगे. आप बना दीजिए अपने बुक पे. फिर अब हम चलते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 10 मीटर. ये 20 मीटर, 30, 40, 50 और 0 पे में कितना मिला? 60 मीटर मिला. मिला कि नहीं? 0 पे में 60 मीटर मिला, लेकिन हमें तो 66 मीटर इंडिकेट करना है. तो ये जो हमने डिवाइड किया है वापस से 10 भाग में, उसको हम क्या करेंगे? ये हो गया 61, 62, 63, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पे एक आपको वर्टिकल लाइन जो है वो बनानी है. तो ये जो डिस्टेंस है आपका 66 मीटर हो गया. गूगल की जो मैप दिखा रहे थे सिमिलरली हमने वैसे ही स्केल बना दी. तो गूगल में कैसा दिखा रहा था? सिंपल जो है कि इस तरह से दिखा रहा था. इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा था कुछ. इस तरह से दिखा रहा था. ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा हुआ आता था? 50 मीटर. कभी 50 मीटर आ जाता था, कभी 60, कभी 100 मीटर आ जाता था. ठीक है, तो कभी क्या है कि 1 किलोमीटर आ जाता था. तो ये हमने स्केल जो है वो बना के दे दी गूगल को कि भाई साहब ये लीजिए और इसको आप अपने प्रोग्रामिंग में सेट कर दीजिए. तो ये जो स्केल है आपकी, ये पूरी स्केल वो हमने ड्रॉ इस तरह से किया है, इस फिगर के हेल्प से. आई बात समझ में? अगर मान लीजिए मैं अब यहाँ पे 66 मीटर की जगह में बोल दूं कि आपको 42 इंडिकेट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप 40 पे पहले एक जो है मैं वापस से करता हूं. ठीक है, अब आपको क्या है कि मैंने आपको सेम आरएफ दिया. ठीक है, लेकिन 42 मीटर आपको इंडिकेट करना. तो आप क्या करेंगे? आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है. आपको पहले 20 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. ये किस तरह से आया? यहां से आपको पता चलता है आपके स्केल की लेंथ जो है आपको हमेशा 20 सेंटीमीटर रखनी है. ठीक है, अगर 20 सेंटीमीटर आपको नहीं रखने की है
तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो हमने 10 to नहीं, हमने 10 सेंटीमीटर एज्यूम किया है, ठीक है। दिस इज योर अजम्पशन। अवाज कपाई ना આવે છે। हाँ, अवाज कपाई ना આવે છે સર। so I will upload lecture, recorded lecture, so you can see that also, okay। so ठीक है, ये 42 मीटर इंडिकेट करना है, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, 20 सेंटीमीटर की लेंथ वाली स्केल ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम इसको हम डिवाइड करेंगे 40 + 2, ओके, 40 + 2। सो हमें क्या करना होगा कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक्सट्रीम लेफ्ट पोर्शन है उसको वापस से 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 जो है वो फर्स्ट डिवीजन पे रखेंगे, और यहाँ से हम 40 पे जो है वो एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो हम वापस से चलते हैं, 40, ये हो गया 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर पर, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 मीटर और चाहिए, तो 1 और 2, तो ये जो है हमारा एक्चुअली 42 मीटर हो गया। समझ में आई बात? समझ में आया? इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें कोई डाउट है? अभय रामलिया? यस सर। आपको समझ में आया एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस लेक्चर में क्या सीखा हमने? हाँ सर, स्केल विषय साહેબ બધું હતું સર, ને અમુક સ્ક્રીન થોડી બ્લર થઈ જતી હતી મારે। Okay, fine. So those students having a network issue, I will upload it in your e-content, so you can get there also. Okay. Okay sir. પ્રસિદ્ધ ચાવડા? हाँ सर। हाँ, મને થોડા સમરી આપી દો ને 1 મિનિટમાં, શું શીખા આપણે લેક્ચરમાં? સર પહેલા તો આપણે સ્કેલ શીખા। ઓકે, સ્કેલ પછી તો આપણે 2 મિનિટ હું બુકમાં જોઉં। હા હા, વાંધો નહીં। પછી પ્લેન સ્કેલ, ડાયાગોનલ સ્કેલ, પછી પ્લેન સ્કેલ ને આપણે ડિટેલમાં શીખા, પછી ડાયાગોનલ સ્કેલ ને ડિટેલમાં શીખા, પછી ગૂગલ મેપ નું તમે કીધું પેલું 2 કિલોમીટર 50 મીટર વાળું। एक्चुअली તમે શું શીખા કે તમે ગૂગલ મેપ જે સ્કેલ યુઝ કરે છે ને એ તમે ડ્રો કરતા આજે શીખા, એને અલ્ગોરિધમ કંઈક સેટ કરવું પડે પ્રોગ્રામમાં, કમ્પ્યુટરમાં, તો ધેટ વોટ યુ આર લર્નિંગ રાइट नाउ। ओके, संतोष कुमार आप ब्रीफिंग दे दीजिए थोड़ा 1 मिनट में। यस सर। हाँ, आप बता दीजिए आपने लेक्चर में क्या सीखा? सर हम लोगों ने आज स्केल के बारे में सीखा, जैसे स्केल कितने प्रकार के, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, उसका प्लेन स्केल के एक एग्जांपल भी किए हैं। और क्या प्लेन स्केल जो है वो कैसे निकालते हैं, या स्केल किस टाइप से निकालते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में सीखे हैं सर। ओके, उमेश कुमार? यस सर। आप समझाइए थोड़ा, ताकि जिसको भी समझ में नहीं आया वो उसको समझ में आ जाए। यस सर। हाँ, समझे। हम स्केल सीखे आज, स्केल कैसे बनाया जाता है। ओके, फिर यानी ज्यादा, जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है तो उसको हम छोटा करके बनाया जाता है। यस, ये सीखे, क्योंकि ओके, बड़ा एरिया तो उसको हम उतना बड़ा पेज या उतना बड़ा कुछ तो है नहीं, से उस पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको छोटा करके उसका स्केल लेकर, स्केल से हम छोटा करके उसको बनाएंगे। ओके, और गूगल मैप में देखे कि उसमें कैसे स्केल बढ़ता घटता है, वो कैसे यूज होता है। ओके, नाउ इन जनरल आई विल और सजेस्ट सर यू। एक बात और है सर। हाँ, बताइए। जैसे कि सेम 2 में हमने सीखे थे कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था स्केल में 20 सेंटीमीटर, और तो वहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड किए, और वहाँ पे 66 मीटर था, हमें थी स्केल स्केल लेना था, तो उसे आप 10 भाग में डिवाइड करें। और सेम 2 में हमने ना 6 पार्ट में डिवाइड करते थे, जैसे कि 66 को 6 पार्ट में डिवाइड करते थे यहाँ पे सर। हाँ, मैं आपको क्या ऐसा क्यों? हाँ, देखिए हर एक का जो है अलग अलग मेथड होता है। मैंने सिंपल राउंड फिगर रखा, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, 66 को 60 + 6 बोल दिया। अगर आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो, 66 को आप बोल दीजिए 59 + 7 बोल दीजिए, है ना।
तो आपके लिए आसान कौन सा रहेगा? 10 वाला, ठीक है, राउंड फिगर वाला। यस सर। मैं आपको ऐसे, हाँ, आप सभी को ऐसा सजेशन देता हूँ कि आप जो है गूगल मैप वाला जो हमने आपको सिखाया वो आप अच्छे से एक बार देखें। और दूसरी चीज, ये जो स्केल वाला एग्जांपल हमने किया ना, वो आप एक बार अपने नोटबुक में ड्रॉ करके देखिए, तभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स पता चलेंगे। और अगले लेक्चर में जो है, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए उमेश कुमार। अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे, अगर डाउट्स होंगे उसमें कहीं तो हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल आपको 2 टास्क करने हैं। पहला जो है वो गूगल मैप जो है वो आपको देखना है स्केल कैसे बढ़ती है। अगर स्केल बढ़ती है तो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है मैप से, स्केल कम होती है तो मुझे कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये आपको 2 चीजें देखनी है। दूसरी बात, आपको जो हमने प्लेन स्केल कंस्ट्रक्ट किया ना, वो एग्जाम्पल वापस एक बार आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसमें डेफिनेटली आपको डाउट्स होंगे, और वो डाउट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एंडोमेन नंबर नहीं लिया है, नहीं लिखा है चैट बॉक्स में, तो आप लिख दीजिए, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और किसको अब टास्क सबमिट करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये 3 तो है ही। ऋत्विक वाजा को यूनिट कन्वर्जन वाला टेबल देना है, यश परमार को भी टेबल कन्वर्जन देना है, दीपेश हुआ और उमेश कुमार को प्लान वर्सेस मैप भेजना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं आपको ना उसको ये पूरे लेक्चर की समरी सबमिट करनी है मुझे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो आनंद जोशी તમારે સબમિટ કરવાનું છે। યસ સર, એટલે સમરી કે સર તમે સમજાવ્યું બધું? બધું 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 આખા લેક્ચર નું। અનુજ કચોરિયા। ઓકે અનુજ, યસ સર। તમારે સબમિટ કરવાનું છે। કેવલ દવે। हाँ सर। હા, પછી જૈનબ। हाँ सर। પછી દીપેશ ભુવા। બંને કરવાનું, ટેબલ એ કરવાનું અને લેક્ચર પણ। ઓકે સર। પછી પ્રસિદ્ધ ચાવડા। હા સર। અને લાસ્ટમાં આપણે આપીએ ચૌધરી। કોણ છે ચૌધરી? બંને બંને चौधरी, दोनों दोनों चौधरी, दीपक कुमार और करण कुमार। यस सर। ડિટેલ માં હા કેમ ખાલી સ્કેલ ને પ્લેન સ્કેલ ડાયાગોનલ સ્કેલ ને એ બધી ખાલી લખીને આપી દેવાનું હા છે ને? હા હા, આખા લેક્ચર નું, બરાબર। સર મોકલી દીધું હો। डन डन डन, चलो હું જોઈ લઈશ। दीपक कुमार चौधरी और करण कुमार चौधरी। जी सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो। સર લીવ થવાનું હે? हेलो क्या हो रहा है कृपाल भाई? सर वही आ गया। और देख बोलो बोलो। का पता नहीं कुछ। તમારો અવાજ કપાય છે। शायद व्हाट्सएप करेगी। હા, અડધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હાલો લીવ થઈ જાય ઋતિક। લીવ થઈ જાય એમ કહું તો થઈ ગયા?
રેકોર્ડિંગ ચાલુ હે ભાઈ એટલે ભાઈ બધા થઈ ગયા હવે